A lamp doesn't speak, it introduces itself through its light. A lamp doesn't speak, it introduces itself through its light. Achievers never expose themselves, but achievement exposes them. डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरी नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। Now let's begin the celebration with the welcome speech by our mathematics teacher Molina ma'am. Thank you, Vipranshi. A warm and cherished good morning to all of you, respected principal sir, respected HM ma'am, to all my colleagues and my dear students. Today, we are celebrating National Mathematics Day on the occasion of birth anniversary of Srinivasa Ramanujan. This was announced by our Prime Minister Manmohan Singh on the 26th February 2012 at Madras University. On this auspicious occasion, I extend a warm welcome to all of you. Mathematics is an important part of our life. We all are connected with maths all around. In our daily life, in profit, in loss, directions, angles, shapes, which we see everywhere is maths. In mathematics, we have nothing, but in mathematics there is a number 0 for the nothing also. For छोटे बच्चे, अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैथ्स में हम कुछ नहीं है नहीं बोलते हैं, हमारे पास उसके लिए भी एक नंबर है 0. करेक्ट? यस और नो? 0 की एक अपनी स्पेशलिटी है. 0 मीन्स नथिंग. हम डेली लाइफ में ये बोलते हैं कि ये बच्चा 0 है या ये व्यक्ति 0, इसके पास कुछ नहीं है, बट इन मैथ्स 0 में बहुत एबिलिटी है. 0 विद द एडिशन साइन, अगर 0 को किसी से प्लस किया जाए तो वाकई में 0 की कोई वैल्यू नहीं है. जिसके साथ वो प्लस होगा 0 उसी में डिसॉल्व हो जाता है. इफ वी विल ऐड 5 + 0 वी विल गेट 5 एज अ आंसर. 0 की वहाँ वाकई में कोई वैल्यू नहीं है, बट 0 इज मोर पावरफुल विद द मल्टीप्लीकेशन साइन. अगर 0 को हम किसी से मल्टीप्लाई कर दें तो डेफिनेटली बड़े से बड़ा नंबर भी क्या हो जाता है? 0. Correct? So here we can see some little moral value from this 0. If we can see our ability, अगर आप अपनी ability check करो, if you will go with the addition sign, if you are a 0 and if you want to go with the addition sign, that means आपके पास कुछ भी नहीं होगा, आप जिसके साथ जुड़ रहे हो उसके साथ डिसॉल्व हो जाओगे. But if you will go with the multiplication sign, definitely आप उस जगह पे अपनी छाप जरूर छोड़ोगे. You will get the success, definitely. So dear students, in the mathematics हमको ये सिखाता है कि you have to see your ability, your X factor, जो हम सबके अंदर होता है. हमारे पास बहुत सारी एबिलिटी है, बट एक एबिलिटी ऐसी होती है जो आपको लाइफ में आगे लेके जाता है, और ये चीज़ हम मैथ्स से ही सीखते हैं. मैथ्स हमें ये बताता है इन आवर डेली लाइफ फॉर द ईच प्रॉब्लम, एवरी प्रॉब्लम वी आर हैविंग सॉल्यूशन. जैसे मैथ्स में होता है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन बिकम्स अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ यू. आपके लिए वो एक चैलेंज होता है. इन लाइफ ऑल्सो वी आर फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस. सो माई डियर स्टूडेंट्स, today on the Mathematics Day, I welcome to all of you and I hope you all will enjoy today's program. Once again, I hearty welcome to all of you. Thank you. Thank you so much ma'am. यूं ज़मीं पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं ज़मीं पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल क्योंकि ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है. Now I would like to invite Ayushi Namdev for deliver her speech. A very good afternoon, everyone. I, Ayushi, here is to present my speech on Mathematics Day. First of all, I would like to congratulate you all on this occasion.
Now let's start with some introduction. National Mathematics Day is celebrated every year on December 22 to honor the birth anniversary of Srinivasa Ramanujan. He died at the age of 32 due to tuberculosis. Ramanujan gave almost 3,500 maths formulas to the world that scientists have still not been able to prove completely. The aim of the celebration is to raise awareness about the importance of maths amongst people for development. Srinivasa Ramanujan was a self-taught mathematician. The celebration of this day pays tribute to the legend and his contribution towards maths that led to development. Srinivasa Ramanujan was born on December 22 in 1887 in a Tamil Iyengar Brahmin family in Erod, Madras Presidency. He was a mathematician who is often called as the man who knew infinity. He had no formal training in mathematics, but he was able to solve trigonometric calculations and problems just at the age of 12. He went to Trinity College in England, where he was given a lot of credit for his math contributions. On April 29, he took his last breath in 1920. Mathematics is a fundamental part of human thought and logic, and integral to attempts at understanding the world and ourselves. Mathematics provides an effective way of building mental discipline and encourages the logical reasoning and mental rigor. In addition, mathematical knowledge plays a crucial role in understanding the context and context of other school subjects such as social studies, science, etc. Mathematics is the study of measurements, numbers, and space, which is one of the first sciences that humans work to develop because of its great importance and benefit. The origin of the word mathematics is in Greek, which means tendency to learn. And there are many branches of mathematics in science that are related to numbers, including geometric forms, algebra, and others. Mathematics play a vital role in all aspects of life, whether in everyday matters such as time tracking, driving, cooking, or jobs such as accounting, finance, banking, engineering, and software. These functions require a strong mathematical background, and scientific experiments by scientists need mathematical techniques. They are a language to describe scientists' work and achievements. As for mathematical inventions, they are numerous throughout the ages. Some of them were tangible, such as counting and measuring devices, and some of them are not, such as methods of thinking and solving. The symbols that express the numbers are also one of the most important mathematical inventions. Mathematics helps in analytical thinking. While solving maths problems, data are collected, assembled, and then are interconnected to solve them. Mathematics helps in analytical thinking, and along with that, it helps to develop an ability to think. Along with that, it explains how things work. It helps to develop wisdom. It increases the speed of intuition, and it makes the child smarter. After all, it provides the child with an opportunity to get to the world. That's why mathematics is important for every student and everyone, whether it is in the matter of subjects or in our daily life. Along with this, I would like to wind up. Thank you so much, and happy Mathematics Day, everyone. Thank you, Ayushi. Maths matters for computer science because it teaches us students how to use abstract languages, works with algorithms, self-analyze their computation, thinking over accurately modeling real-world solutions. इन सबकी शिक्षा देने वाले हम सबके बीच मौजूद हमारे CS के टीचर मिस्टर अमरनाथ पाठक से अनुरोध करती हूँ कि वे आएँ और इन सबकी जानकारी प्रदान करें. A very good morning to respected principal sir, all my dear colleagues and dear students. First of all, greetings of National Mathematics Day, which we are celebrating on the birthday of Srinivas Ramanujan. And as Ayushi said just a while ago about all the achievements of S. Ramanujan, so you must know that he was fellow of the Royal Society. So if you consider his recognition, if you consider his awards, then he was appointed as fellow of the Royal Society, and it's a really very big achievement.
Okay, it's not a easy job to get appointed as a fellow of the Royal Society, and many people try for this, but it's very, I mean, very few. It is very uncommon that someone gets appointed as fellow of the Royal Society, and Ramanujan was one of them. Okay, now I am here to talk about integration of computer science and mathematics. So I always say to my students that mathematics and computer science are close friends. I mean, you will find lots of similarity between computer science and mathematics, and that's why if you see here that all the students who opt for mathematics in class 11th standard, they get to study computer science. The reason behind this is because those who have mathematical background, those who have mathematical thought process, they can easily adapt themselves with the field of computer science. That's the reason behind this. Now, I will talk about two things today. First is that all of you must be browsing internet, and all of you must have seen formulas on the web pages. So have you ever thought that how this formula appear on the web pages? I mean, what is the technique to encode mathematical formulas on the web page? This discussion might not be relevant to the primary students, but secondary students and all the teachers, especially those who are from scientific and mathematical background, they must know this thing, that all the web pages where you see formula, so basically in order to encode formula, in order to represent formula, there are certain languages, and those three languages are LaTeX, Presentation MathML, and Content MathML. So these are the three languages using which we encode mathematical formulas in the web pages. Okay, so if you anywhere get to see a web page containing formula, so you just look at its content and you will see some Presentation MathML or Content MathML or LaTeX. So the formulas are written using these three languages only. Now, the second topic that I would like to talk is that have you ever thought that how you can retrieve formulas from the scientific documents? For example, in Google search you can search text things, like for example you can search KV Khairagarh, okay, or Khairagarh or Raipur. So you can always search textual contents, but how will you search formula in the Google? Have you ever thought about this? Okay, so such kind of search engines are called mathematical search engines. So these are the search engines in which you can type formula, and you will, if you search that formula, you will get the search result containing those particular mathematical formulas. But let me tell you that the field of mathematical search is not that easy. Okay, there are lots of challenges in the field of mathematical information retrieval. The first challenge is, especially those who are from mathematics, that for example, if you want to search x square plus y square in the document, in a scientific document, then x square plus y square should match with a square plus b square also. It should match with z square plus t square also. Okay, so there may be exact formula inside the document, there may be similar formula inside the document, there may be a sub formula inside the document. Okay, so it is not exact matching. Okay, that is the first thing you should know. If you search text, for example, if you search Khairagarh, then it will exactly match with those documents which contain Khairagarh. Okay, so text search is not that difficult, but math search is really difficult. Okay, if you search Pythagoras theorem, for example, then it must match with h square is equal to l square plus b square also. It may match with a square is equal to b square plus c square also. Okay, so mathematical matching is very difficult. Now another challenge is that if you type Pythagoras theorem in the Google, so it should not only give you the text results, it should also give you mathematical results. It should give you the documents containing mathematical formula. Similarly, if you type h square is equal to l square plus b square, then you should get the documents containing this formula, and you should get the documents containing Pythagoras theorem also. So this is called context guided retrieval. Okay, it's a very, research term, but so these are some of the challenges that I wanted to put in front of you, so that you must be aware that mathematical search is not that easy, and encoding mathematical formula in the web pages is also not easy. Okay, so those who will opt for mathematics in future, they should think about this. These are the current research topics, and they are on boom these days. Okay, and the field of natural language processing is used to tackle these problems. So those who are interested in research, those who will come in class 11th or 12th, so I will tell you more details about these fields.
So I hope this information was useful for all of you. Thank you. Have a good day. Thank you so much, sir. There is a quote given by our mathematician Srinivas Ramanujan. एक समीकरण मेरे लिए तब तक मायने नहीं रखता जब तक वह ईश्वर के विचार को व्यक्त न करे. A equation means nothing to me unless it expresses a thought of God. Now I would like to invite Shruti Sahu to present her poetry. Good mathematics is not about how many answers you know, it's about how you behave when you don't know. A very good afternoon to everyone and wishing a very happiest mathematics day. Today I am here with a poem on the mathematics. हिंदी में शून्य, उर्दू में सिफर, हिंदी में शून्य, उर्दू में सिफर, अंग्रेजी में बोलते हैं जीरो. आर्यभट्ट के निर्माण करके यह बन गए हैं मैथ्स के हीरो, बन गए हैं मैथ्स के हीरो. उछल पड़े वो नंबर के जल में, उछल पड़े वो नंबर के जल में, 1 2 3 4 के निर्माण में. फिर पाइथागोरस है आते, मैथ्स में अपना जलवा दिखलाते, मैथ्स में अपना जलवा दिखलाते. थोड़ी देर में रामानुजन आ जाते, थोड़ी देर में रामानुजन आ जाते, पाइथागोरस का साथ निभाते. फिर रेने डेस्कार्टिस भी आ जाते, फिर रेने डेस्कार्टिस भी आ जाते. रैशनल इरेशनल में डिफरेंस बतलाते, रैशनल इरेशनल में डिफरेंस बतलाते. इसी तरह आगे बढ़ते फॉर्मूले और मैथ्स की दुनिया भरी पड़ी, इसी तरह आगे बढ़ते फॉर्मूले और मैथ्स की दुनिया भरी पड़ी. थक कर सारे ज्ञानी सो जाते, थक कर सारे ज्ञानी सो जाते, सपनों में भी मैथ्स बनाते, सपनों में भी मैथ्स बनाते. थैंक यू सो मच. Thank you, Shruti. Now I invite Anjali Vaishnav to tell us something about our mathematicians. Good afternoon, respected Principal Sir. Good afternoon, respected Principal Sir, respected teachers, and my dear friends. On this auspicious occasion of Mathematics Day, I am telling you about some great Indian mathematicians. India had a long legacy of extraordinary teachers and scholars who have immense knowledge about mathematics and astronomy. From discovering the concept of zero to calculating correct days in a year, mathematicians in India have been at the forefront of challenging the norms as well as the thirst of knowledge. Here are some Indian mathematicians who changed the world by their discoveries and talents. Srinivasa Ayyanagar Ramanujan was born on December 22, 1887 in present-day Tamil Nadu, India. He is the one of most recognized Indian mathematicians, although he had almost no formal training in pure mathematics. He is known for mathematical analysis, number theory, infinite series, and continued fractions, including solutions to the mathematical problems considered to be unsolvable. Aryabhatta was born on 476 Common Era in Patliputra, which is present-day Patna, Bihar. He is famous for putting out concepts like lunar eclipse, solar eclipse, rotation of Earth on its axis, reflection of light by moon, value of pi correct to 4 decimal places, circumference of Earth to 99.8% accuracy. His works include the famous Aryabhatiya, which he wrote when he was just 23 years old. Brahmagupta was born on 598 Common Era in Ujjain. He was an Indian mathematician and astronomer. His book Brahmasput Siddhant is the first text that mentions zero as a number. Besides that, he also gave out many algebra and arithmetic related concepts and formulas. Fifth, Shakuntala Devi. Shakuntala Devi was born on 4 November 1929. Was an Indian mathematician, writer and mental calculator, popularly known as human computer. Her talent earned a place in 1982 edition of Guinness Book of World Records. A movie Shakuntala Devi also has been made on her life, tracing her life, pointing her childhood, her great achievements, how she became human calculator.
Neena Gupta, born in 1984, is a professor at SISCI Kolkata Indian Statistical Institute. She has won Shanti Swarup Bhatnagar Award in category of mathematical sciences, the highest honor in India in the field of science and technology. Neena Gupta received the sorry, Neena Gupta received the Indian National Science Academy Young Scientist Award in 2014 for the solution she proposed to the Zaraski cancellation problem in positive characteristic. She is also the recipient of Abdul Salam ICTP's Ramanujan Prize for Young Mathematicians from Developing Countries in 2021. Happy Mathematics Day to all of you. Thank you. I hope you liked it. Thank you, Anjali. A quote given by शकुंतला देवी. बच्चे क्यों गणित से डरते हैं? गलत दृष्टिकोण के कारण, क्योंकि इसे विषय के रूप में देखा जाता है. Why do children dread mathematics? Because of the wrong approach, because it is looked as a subject. Now, I invite Anjali, Rupam and Kavyansh to present some tips and tricks related to maths. A very good afternoon, everyone. I am Anjali Singh. Today we are going to tell you some basic mathematics tricks useful for competitive exam and daily life to us. Maths. Maths is not a learning subject. It's a tricky and conceptual based. So let's start. एक क्वेश्चन है जो हम मतलब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये काम आ सकते हैं, स्पेशली 10th क्लास में जो हमने फेस किया है, और उसमें हमें मतलब बहुत ट्रिक की ज़रूरत हो सकती है क्योंकि हम लॉन्ग मेथड नहीं कर पाते हैं, कभी हमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है बोर्ड्स में. सो एक क्वेश्चन है, उसके मैं आपको उसे ट्रिक समझाना चाहती हूँ. 24 men can complete a work in 16 days. 16 women can complete the same work 24 days. In how many days will 8 men and 16 women complete the work? 24 men हैं वो 16 days में अपना वर्क कंप्लीट करते हैं और 16 women हैं वो 24 days में अपना वर्क कंप्लीट करते हैं. तो 8 men and 16 women कितने टाइम में अपना वर्क कंप्लीट करेंगे? तो हमें 8 का निकालना है, 8 मैन का. तो 8 है वो 24 मैन है, 24 मैन है वो 16 डेज में अपना वर्क कंप्लीट करते हैं. तो हमें 8 है वो 24 इंटू 16 करेंगे और हमें 16 वेमेन का निकालना है जो हमें 6 वेमेन का निकालना है जो 16 वेमेन है वो 24 डेज में अपना वर्क कंप्लीट करते हैं. 8 + 6 करेंगे तो 14 आएगा और इसका हम कॉमन ले लेंगे और इसका हम फैक्टराइज करेंगे. इसका हम को आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 27.4. ये मैंने नेट के थ्रू नेट के सोर्स के थ्रू लिया है. मैंने ये नेट के सोर्स के थ्रू लिया है. होप सो आपको ये समझ आया हो और आपको यूज़फुल हो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. गुड आफ्टरनून एवरीवन. तो अभी मैं आपके सामने आपको कुछ नए ट्रिक्स से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, तो जो आपको हेल्प करेगा 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करने में.
और ये काफ़ी सिंपल है और इससे हमारा कैलकुलेशन फास्ट भी हो सकता है। जो आपके क्वेश्चन और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें टाइम की वैल्यू बहुत होती है। तो चलिए देखते हैं। तो मैं पहले अपना 2 डिजिट नंबर, ये हमारे 2 डिजिट नंबर, तो हम इसको जनरल सॉल्व करते हैं इस फॉर्म में लिखते हैं। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे ट्रिक से तो इस फॉर्म में लिखेंगे और पहले इन 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लिकेशन होता है 2, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। और इन जो ये वर्ड है यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से और 2 को 2 से। तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा, इसका प्रोडक्ट होगा 1 और इसका होगा 2। तो इसका जो हम इन दोनों जो हमारे मल्टीप्लाई करने से सम मिले हैं उसको हम ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 5। तो हम ये 5 को यहाँ रखेंगे। फिर लास्ट में हम इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे जिसका प्रोडक्ट आएगा 2। तो हमारा आंसर है 252। तो ये ट्रिक काफ़ी इजी है और आपके पास कर लेते हैं। अब कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 63 एंड 56। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो 8। अब हमारे पास 18 आया था तो हमने एक इसको कैरी दे दिया। फिर हम इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसका प्रोडक्ट होता है 15। 5 into 3 15 and 6 into 2 6 33। तो इसका सम होगा। फिर हम इन सभी को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट नंबर हम लोग को प्रोडक्ट के रूप में मिला है, तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 को लिखेंगे और 5 को फिर से कैरी दे देंगे। तो यहाँ पर 5 into 6 30 होता है और ये 5 को करेंगे तो फिर हो जाएगा 35। तो इसका प्रोडक्ट 53 into 63 is equal to 35 28। तो होप आपको ये अच्छा लगा होगा और ये काफ़ी इजी चीज़ है और ये आपके कैलकुलेशन को बहुत फास्ट भी करते हैं। थैंक यू। अब हम देखेंगे कि हम 2 डिजिट नंबर से हम जल्दी से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमें बहुत टाइम लग जाता है, जैसे कि बड़ी नंबर मिल जाता है वो 72 92 94, इन सब नंबर से हम कैसे अपना प्रोडक्ट जल्दी से ला सकते हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ 9216 डिवाइडेड बाई 5072। जैसे कि काफ़ी बड़ा नंबर है, इसका टेबल तो हमें याद ही नहीं होगा, तो इसे हम जल्दी से कैसे डिवाइड करें और हमें जो आंसर है वो जल्दी से लाना होगा, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो तो मिनिमम 5 सेकंड में हमको इसका आंसर लाना पड़ सकता है। देखिए इसका ट्रिक जो है ना वो काफ़ी सिंपल है, हमको इसको सिंपली ऐसे लिखना होगा। जो हम डिवाइड कर रहे हैं जिसका 10th प्लेस वाले नंबर को 10th प्लेस वाले नंबर को कैपिटल में और जो बस यूनिट प्लेस में उसको स्मॉल में लिखेंगे, और जो इसको है यहाँ पे लिख के इनमें हमें ऐसे करके पार्टीशन बनाना है कुछ इस प्रकार का ऐसे। उसके बाद हमें जस्ट 7 का टेबल पढ़ना है, जैसे कि 7 1 7, इसको यहाँ पे लिखना है कि कितने बार में वो जा रहा है। तो 7 टाइम्स 7 1 7 माइनस करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचे, उसको सिंपली यहाँ पे लिखेंगे, ये 22 हो जाएगा। उसके बाद ये जो नंबर है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है और जो हमारा नंबर आया है 22 इससे माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा 2, तो ये 20 हो गया। अब हमें 7 में के टेबल में ये देखना है कि इससे छोटा नंबर कितने टाइम्स में आएगा, तो वो है 2, 7 2 14, माइनस करने पे 6 बचा। इस बार हमें 6 रिमाइंडर मिला, उसको भी यहाँ पे सिंपली लिखेंगे 6, तो ये हो जाएगा 61 हमारा। उसके बाद फिर से वही प्रोसेस कि इसको इससे इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 4, जस्ट माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 57। उसके बाद हमें फिर से 7 के टेबल पे जाना है और ऐसा नंबर ढूंढना है जो इससे कम हो। तो 7 8 56 होता है, तो 56 माइनस 1 करेंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। और उसके बाद 7 8 56 होता है, तो 8। जैसे ही हम यहाँ लाइन के पास पहुँच जाएंगे हमें यहाँ पे एक पॉइंट लगा देना है सिंपली, जिससे अगर कोई जैसे कि हम डिवाइड कर रहे हैं और कोई किसी
हमें पॉइंट में जो आंसर मिल रहा है वो इससे पता चला कि यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे 16 हो गई, तो 2 8 16 और 16 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर है 128। ये मेथड बहुत ही ज़्यादा इजी पड़ता है। थैंक यू। Rupam and Kavyan. Now I invite Kushi Thakur from class 5th A for deliver her speech. Good morning one and all who present here. 22 December is the birthday of the famous mathematician Srinivas Ramanujan. He was born in Tamil Nadu, India in the year 1887. Prime Minister Manmohan Singh declared this day as the National Mathematics Day in 2012. It marks the 125th birth anniversary of Ramanujan. This day was dedicated to him due to his significant contribution to mathematics to the government of India. It was also decided that 2012 would be celebrated as the mathematical year. Lots of fun activities related to math are held on this day for students. The main objective of Mathematics Day is to people aware of the importance of arithmetic, how it is present in day-to-day lives impacting our daily routine. It also encourages young minds to take an active interest in the subject. Thank you. Have a nice day. Thank you, Khushi. Now I invite Girvaram Sahu from class 4th A. is Girvaram Sahu. I study in class 4th A. मेरे पास एक नंबर गेम है, ये मैं आपको खिलाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय को बुलाना चाहता हूँ। आपने जो नंबर सेलेक्ट किया है वो ए में है कि बी में? गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये बच्चा है, एक नंबर्स गेम लेके आया है। इसमें क्या है कि कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उनको कॉलम्स और सब कॉलम में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ प्रिंसिपल सर को सब कॉलम्स में नंबर अपने सेलेक्ट करने हैं और केवल सब कॉलम का नाम बताना है और ये बच्चा सर के द्वारा सोचे गए नंबर को बता देगा कि कौन सा नंबर सर ने, या कोशिश करेगा। ओके। आपने जो नंबर सेलेक्ट किया है वो ए में है कि बी में? अभी इसमें आपने जो नंबर सेलेक्ट किया है वो किस में है?
अगेन बी। आपने जो नंबर सेलेक्ट किया वो इसमें ए में है कि बी में? ए में है। अब आखिरी वाले में आपने जो नंबर सेलेक्ट किया है वो किसमें है? बी। 9। ओके, करेक्ट। तो इसमें नंबर अगर कोई और टीचर आना चाहता तो आ जाए, ऐसा ना कि मैंने प्रिंसिपल सर को नंबर बता दिया पहले से। एक टीचर अगर और कोई आना चाहता तो आ सकता है, क्यों नहीं आएंगे? बोली ना मैडम को बुलाओ, पास में है ना। आपने जो नंबर सेलेक्ट किया है वो ए में है कि बी में? ए। अब सेकंड वाले में आपने जो नंबर सेलेक्ट किया है वो किसमें है? सेकंड कॉलम ए। अब थर्ड वाले कॉलम में? ए। और लास्ट वाले में? ए में है। 6। वेरी गुड, करेक्ट। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू। थोड़ी देर के लिए बस। थैंक यू सो मच गिरवर। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि, दैट इज सर्कल फ्रेंड्स ऑफ सर्कल। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि है 2πr। नाउ आई इनवाइट Trishant and group to present their program. Good afternoon everyone. We are students of class 10th. Today we are presenting a project on arithmetic progression. An arithmetic progression is a sequence of numbers in which each term by adding a particular number to the previous term except the first term. Each number is the sequence is known as term. The fixed number, that is the difference between each term with its preceding term, known as common difference. In left hand side we have 3, 5, 7, 9, 11. It is an arithmetic progression because each term is obtained by 2 to the preceding term except the first term. And in left hand side we have 2, 5, 7, 11 and 4. It is not an example of arithmetic progression because the difference between in each term is not same. Thank you and have a nice day. इसे दूर हटो, इधर आओ। इसको नहीं लाना है। आगे हो तुम और आगे हो। गणित के हर सवाल का हल मिलेगा। गणित के हर सवाल का हल मिलेगा। थोड़ा अभ्यास करो, आज नहीं तो कल मिलेगा। इसी के साथ हमारे बीच मौजूद प्राइमरी के टीचर मिस्टर वीरेंद्र सर से अनुरोध करती हूँ कि वे आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। Thank you, beta, for inviting me. Good morning, one and all who present here. माननीय रामानुजन साहब के बारे में
ज़्यादातर बच्चों ने भी बताया और मोलिना मैम ने भी बता दिया है। रामानुजन एक नंबर होता है, किसी को पता है क्या? विच वन इज 1729। हाँ, ये याद होना चाहिए आपको जितने मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। ओके, मैंने एक कविता लिखी है प्यारे बच्चों के लिए, बहुत फनी है, प्राइमरी के लिए। तो प्राइमरी वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे, उनके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ये कविता। कुछ लोगों ने शायद सुन भी लिया होगा पहले से ही। कविता ऐसे है कि गोला बोला धुड़ुम धड़ाम, गोला बोला धुड़ुम धड़ाम, जो गोले दागे जाते हैं शादी विवाह में, वो वाला गोला नारियल वाला है। गोला बोला धुड़ुम धड़ाम 1 किलो में 1000 ग्राम, गोला बोला धुड़ुम धड़ाम 1 किलो में 1000 ग्राम, खरीद सामान कर मोल भाव 1 किलो में 4 पाव, खरीद सामान कर मोल भाव 1 किलो में 4 पाव, ढिंचक 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 ढिंच 1 फुट में 12 इंच, ढिंचक 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 ढिंच 1 फुट में 12 इंच, मुझको न समझो ऐसा वैसा 1 रुपये में है 100 पैसा, मूवी देखने जाओ थिएटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, जल गई रस्सी बन गई राख 1 मिलियन में होते 10 लाख, जल गई रस्सी बन गई आग 1 मिलियन में होते 10 लाख, लाइन हमेशा सीधी खींचे, लाइन हमेशा सीधी खींचे 1 दर्जन में 12 चीज़ें, करो व्यायाम बहाओ पसीना 1 साल में 12 महीना, करो व्यायाम बहाओ पसीना 1 साल में 12 महीना, सुरक्षा करता बॉडीगार्ड 36 इंच में 1 यार्ड, करो यात्रा ले लो टिकट 1 घंटे में 60 मिनट, फर्जी मैसेज ना करो सेंड 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो ये छोटी सी कविता थी बच्चों के मैथमेटिक्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Now, I invite Akshara Jain to deliver her speech. Akshara Jain. Good afternoon, respected principal sir, teachers, and my dear friends. I am Akshara Jain from class 10th B. Today is National Mathematics Day, so I am here to tell you about National Mathematics Day. Mathematics is not only textbook or notebook, it is also applied in our daily life. The Indian government declared 22 December to the National Mathematics Day. This was announced by Prime Minister Manmohan Singh on 26 February 2012 at Madras University to mark the 125th birth anniversary of the Indian mathematician Srinivas Ramanujan. On this occasion, Manmohan Singh also announced that 2012 would be declared as the National Mathematics Day. The mathematician Srinivas Ramanujan's journey to being a genius began when he sent a letter to the professor where he had mentioned about 120 mathematical theorems. He joined Trinity College a few months later before the outbreak of World War I. In 1916, he was awarded the Bachelor of Science degree. The next year, he was elected to the London Mathematical Society. In 1918, he was elected a Fellow of the Royal Society for his research on eclipsed function and theory of numbers. The same year, in October, he became the first Indian to be elected a Fellow of Trinity College, Cambridge. Now I will tell about life of Archimedes, father of mathematics. Archimedes is considered the father of mathematics for his significant contribution to development of mathematics.
He was born in 287 BC into an astronomer family and died in 212 BC. His contributions are being used in great vigor even in modern times. From his childhood, Archimedes took an interest in studying science, mathematics, and politics. Throughout his entire life, Archimedes was fascinated with mathematical equation and problem solving. Later, he joined the School of Mathematics in which is in Egypt. The first field medal awarded in 1936 to Finnish mathematician Linus Alphorus and American mathematician G. Stiglitz, and it has been awarded every 4 years since 1950. Its purpose is to give recognition and support to younger mathematical researchers who have made major contributions. In 2014, the Iranian mathematician Mariam Marzikhani became the first female field medalist. In all, 60 people have been awarded the field medals. Mathematics. Now I will tell about uses of mathematics in our day-to-day life. Mathematics is a cradle of all creation, without which the world cannot move an inch. Be it cook or a farmer, a carpenter, a mathematician, a shopkeeper or mechanic, a doctor, an engineer or a scientist, a musician or a magician. Everyone needs mathematics in their day-to-day life. Even insects use mathematics in their everyday of life. Snails make their shells, spiders design their webs, and bees build hexagonal combs. There are countless examples of mathematical patterns in nature's fabric. Experience says learning mathematics can be made easier and enjoyable if our curriculum includes mathematical activities and games. Maths puzzles and riddles encourages and attract an alert and open-minded attitude among youngsters and help them develop clarity in their thinking. Emphasis should be laid on development of clear concepts in mathematics in a child right from the primary classes. Life is a math equation. In order to gain the most, you have to know how to convert negative into positives. Thank you. Have a great day. Thank you, Akshara. Now I invite the students of class 4 to present shapes.
शेप रिप्रेजेंट की है और ये हमारे बच्चे ट्रायंगल बन के आए हैं। सब लोग बोलिए I have a triangle. Do you know? I am a three-sided and three angles. Okay. Next, square shape. Start. I have a square. Do you know? I have a four-sided and my all sides is equal. Okay, next circle. I am a center of the circle. Do you know? Moon is also circle. पता है मेरी मम्मी की रोटी भी गोल होती है. Thank you, बेटा. Now I invite Gaurav and Atul. Good afternoon. Good afternoon, respected principal sir, teachers, and my dear colleagues. I'm here to explain types of angle. You might wondering what is an angle. Let me tell you. An angle is formed when two rays or two line segments join at a common point, and a common point called vertex. There are 6 types of angle. First, there are 6 types of angle. First, acute angle. जो एंगल जीरो से बड़ा हो और 90 से छोटा हो उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं. सेकेंड, राइट एंगल जो एग्जैक्ट 90 हो. थर्ड, ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से छोटा हो, 180 से छोटा हो लेकिन 90 से बड़ा हो उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल. फोर्थ, स्ट्रेट एंगल जो 180 फॉर्म करता हो. फिफ्थ, रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल. लास्ट, सिक्स्थ, फुल रोटेशन एंगल जो 360 डिग्री फॉर्म करता हो. थैंक यू. Thank you, Gaurav. Now I invite our teacher Lokesh sir to present his poetry. Thank you. Good morning, respected principal sir, all my learned colleagues and dear students. First of all, I would like to convey my hearty greetings and well wishes on this auspicious occasion, National Mathematics Day 2021. And lot of have been presented and told by the teachers and students. So now, I would like to correlate mathematics with the life. So I have a poem, so I am going to recite it. आइए जिंदगी का गणितीय किस्सा कुछ इस तरह सुलझाया जाए. आइए जिंदगी का गणितीय किस्सा कुछ इस तरह सुलझाया जाए. चलो 1 और 1 11 हुआ जाए. चलो 1 और 1 11 हुआ जाए. कोई 1 कोई 2 और कोई 100 हो जाए. कोई 1 और कोई 2 और कोई 100 हो जाए. और जीरो हम खुद ही बन जाएं. और जीरो हम खुद ही बन जाएं. लग के औरों के पीछे हम उनका मान बढ़ाएं. लग के औरों के पीछे हम उनका मान बढ़ाएं. आइए जिंदगी का गणितीय किस्सा कुछ इस तरह सुलझाया जाए. आइए जिंदगी का गणितीय किस्सा
कुछ इस तरह सुलझाया जाए। चलो 1 और 1 11 हुआ जाए। चलो 1 और 1 11 हुआ जाए। फासला हो 19-20 तक का, फासला हो 19-20 का, पर कभी आंकड़ा न हो 36 का। फासला हो 19-20 का, पर कभी आंकड़ा न हो 36 का। न तुम कम न मैं ज्यादा, इसकी तकरार न हो। न तुम कम न मैं ज्यादा, इसकी कभी तकरार न हो। लोग हैं सभी बराबर बराबर, हमको बस यही स्वीकार हो। लोग हैं सभी बराबर बराबर, हमको बस यही स्वीकार हो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 गुनगुनाते रहें। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 गुनगुनाते रहें। खुशियों के कदम अनंत तक मिलाते रहें। खुशियों के कदम अनंत तक मिलाते रहें। आइए जिंदगी का गढ़ती किस्सा कुछ इस तरह सुलझाया जाए। चलो 1 और 1 11 हुआ जाए। चलो 1 और 1 11 हुआ जाए। चेहरे पे यूं 12 ना बजाइए, चेहरे पे यूं 12 ना बजाइए। कठिन परिश्रम से मुश्किलों को 9-2-11 करते जाइए। कठिन परिश्रम से मुश्किलों को 9-2-11 करते जाइए। किस्मत से पाई पाई का हिसाब लिया जाए। किस्मत से पाई पाई का हिसाब लिया जाए। एक दूजे का गम आधा आधा उठाया जाए। एक दूजे का गम आधा आधा उठाया जाए। आइए जिंदगी का गढ़ती किस्सा कुछ इस तरह सुलझाया जाए। आइए जिंदगी का गढ़ती किस्सा कुछ इस तरह सुलझाया जाए। चलो 1 और 1 11 हुआ जाए। चलो 1 और 1 11 हुआ जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, Lokesh sir. As we know, mathematics is the base of every language. And as you see कि हमारे इंग्लिश टीचर ने भी मैथ्स में इतनी अच्छी कविता बोल दी। मैथ्स को जोड़ते हुए बहुत ही अच्छी कविता सर ने प्रेजेंट करी। लेकिन काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हम लोग इसको को रिलेट कर लेते हैं। साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो। एक सब्जेक्ट और है म्यूज़िक, जिसमें भी मैथ्स हो सकता है। तो ये थोड़ा सा मैं टीचर्स को सोचने के लिए दे रही हूँ कि कोई ऐसे 5 गाने आप लोग को चुनने हैं जिसमें मैथ से रिलेटेड नंबर हो या शेप्स हो या कुछ भी हो। कोई भी टीचर, मैथ से रिलेटेड नंबर होने चाहिए, शेप होना चाहिए, कुछ भी हो जो मैथ से रिलेटेड हो लेकिन उस गाने में हो। यस मैम। गा के मैडम, गा के गाना है, गाना है मैडम, प्लीज प्लीज। और भी टीचर्स जिनके दिमाग में आ रहा है कि इसमें मैथ्स है, प्लीज वेलकम है। एक छोटा सा है कि हम लोग मैथ्स के बारे में अगर सोचते भी हैं तो सॉन्ग में भी है नंबर्स, और हम बोलते भी हैं। सर आपके लिए भी है सर, एक गाना आपकी तरफ से होना चाहिए। गाना है, मुझे आता नहीं है तो सर। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? सही कहा। वो तो सबको मालूम है। अब ये वाला गाना बच्चे गाएंगे। 1 2 3 चलो सब गाओ। अच्छा पूरा किसको आता है? और कोई सॉन्ग? और कोई टीचर, मेरे शिक्षक साथी जितने भी हैं, और कोई गाना याद आ रहा हो जिसमें नंबर्स हो या शेप हो? सर बहुत सारे हैं। पाठक सर, एक मोनिका मैडम, यही था। और है ना, और गाने हैं। मैं
लोकेश सर का जो पोएम था ना, उसे दो चीज़ें समझाना चाहता हूँ। तो एक 36 का आंकड़ा और एक 12 बजे। 36 का आंकड़ा बच्चों जानते हो आप लोग क्या होता है? 36, देखिए 36 एक्चुअली 3, उसका मुंह इस तरफ और 6 इधर। 36 का आंकड़ा मतलब आपस में जिसकी नहीं बनती है उसको बोलते हैं कि इस लड़का का इस लड़के के साथ या फलावेद का 36 का आंकड़ा है, ठीक है, मतलब उनमें आपस में बनती नहीं है। और दूसरा 12 बजे का, 12 बजे का मतलब चेहरा डाउन, ठीक है। तो 12 ये कहते सर ने शायद ऐड किया था, लोकेश सर दिख नहीं रहे मुझे, चले गए क्या? तो वही है 12 बजे का मतलब कि आपका फेस एकदम डाउन हो जाता है ना, जैसे काम हम पर करो, लंच अभी आपको 11:30 बजे ना मिले तो आपका चेहरा डाउन है, दैट इज़ 12 बजे, ठीक है। तो एक कहावत है। तो एक गाना मुझे भी याद आ रहा है, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। धन्यवाद सर। और कोई टीचर्स, किसी के पास याद आया गाना? हम लोग गाते रहते हैं, देखिए मैथ्स हम लोग बोल रहे हैं कि वी कैन सी एवरीवेयर मैथ्स, हर जगह मैथ्स है, गाने भी गुनगुनाते हैं लेकिन मैथ्स नहीं मिल पाया, नहीं मिला। एनी टीचर्स? किसको बुला रहे बेटा? आप लोग किसको बुला रहे हो? किसको बुला रही हो? हितेश सर, एनी सॉन्ग किसी टीचर्स के पास है और सॉन्ग? चलिए एक गाना मेरी तरफ से। 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। नहीं पता है, नहीं बटेगा मम्मी डैडी का प्यार। 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। थैंक यू। यह बड़ी सोच, यह दूरदृष्टि, यह बड़ी सोच, यह दूरदृष्टि, यह ऊर्जा हमें भी मिल जाए। यह बड़ी सोच, यह दूरदृष्टि, यह ऊर्जा हमें भी मिल जाए तो हम सबके जीवन में आशा की कूपत खिल जाए। सानिध्य मिला मिलता ही रहे, सानिध्य मिला मिलता ही रहे, हम यही निवेदन करते हैं। आ रहे हैं हमारे प्राचार्य यहाँ, हम सब मिल स्वागत करते हैं। करतल ध्वनियों के साथ हमारे प्राचार्य का स्वागत कीजिए। Very good morning, one and all present here, respected teachers and my dear students. First of all, I, on behalf of Kendriya Vidyalaya Khairagarh family, pay tribute to Srinivas Ramanujan, great mathematics of this country, on this auspicious occasion. So, dear children, you must be aware about the mathematical calculation, and mathematics is a subject. It is a science subject. So let me discuss and let me know some important facts of mathematics. So class 11 के लिए क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स कितने प्रकार के होते हैं? मैथमेटिक्स कितने प्रकार के होते हैं? What are the types? हाँ, माही वर्मा ने बताया कि 3 प्रकार के होते हैं। और व्हाट इज गुड नेम? ईशा वर्मा ताली बजा रही है कि आंसर इज वेरी करेक्ट, बट इट इज नॉट ए करेक्ट आंसर।
कितने प्रकार के होते हैं? मैं जस्ट वेट वेट वेट, 2 टाइप्स बोल रहे हैं, कौन कौन से? अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड प्योर मैथमेटिक्स। और 10वीं के एक बच्चे से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बेसिक और एक होता है स्टैंडर्ड। इज इट करेक्ट आंसर मैडम? ये भी गलत है। अगर मैं कहूँ तो इट इज पार्शियली करेक्ट। यदि हम श्रुति का आंसर को हम बोलेंगे प्योर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, लेकिन हम बोलते हैं कि देयर आर सो मेनी ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। यदि हम ब्रांच की बात करेंगे, मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट, और ज़्यादातर हम इसको बोलते हैं कैलकुलेशन, कैलकुलेट करते हैं, रुपया पैसा गिनना, कैलेंडर में कौन सी तारीख है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, और जाके देखो कितने बच्चे हैं। तो साइंस मैथमेटिक्स हर जगह हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, या डेली साइंस इज अ सब्जेक्ट वी यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। तो रोजमर्रा के जीवन में साइंस का इम्पोर्टेंस है। बट व्हेन आई गो थ्रू द चार्ट एंड award list of mathematics, and students are scoring very poor marks in mathematics. मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैथमेटिक्स फियर बोलते हैं। क्लास 3 के बच्चों को हो सकता है कि टेबल नहीं आते, इसलिए सर हम आई couldn't attempt this question, और that is why I scored very less marks in mathematics. As a whole ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और अच्छा नंबर पाने वाले फुल मार्क्स ला सकते हैं, 100 में से 100 भी ला सकते हैं। But unfortunately, some students and few students scored this type of marks. सारी चीज़ें कैलकुलेटेड है। जैसे रॉयल सोसाइटी और ट्रिनिटी कॉलेज में जो पढ़े उन्होंने अवार्ड दिया था श्रीनिवास रामानुजन को, और ग्रेट मैथमेटिक्स के नाम से हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं मैथमेटिक्स डे। तो तीसरी क्लास के बच्चों के लिए एक क्वेश्चन है, हाथ खड़े करेंगे और बताएंगे कि 2 और 2 को प्लस करते हैं तो 4 ही क्यों आता है? 2 और 2 को हम प्लस करेंगे, एडिशन समझते हो ना, सब्ट्रैक्शन, तो 4 क्यों आता है? 5 और 3 क्यों नहीं होता है? हाँ, टू और 2 प्लस 4 होता है, तो 4 ही क्यों होता है? दैट इज द क्वेश्चन। 11th क्लास का माही, छोटे बच्चे नहीं जवाब दे पा रहा था, लेट मी टेक द हेल्प ऑफ द सीनियर स्टूडेंट्स। 2 और 2 4 क्यों होता है? 5 क्यों नहीं होता है? 3 क्यों नहीं होता है? 9 क्यों नहीं होता है? इसके पीछे बात क्या है? सर क्योंकि वो उसकी कांस्टेंट वैल्यू है, 2 2 ही होगा, और दोनों 2 2 ही होंगे, और वो प्लस करने पे 4 ही होगा। कांस्टेंट वैल्यू है, यस बताओ। ओके, वी कैन नॉट चेंज। तो इसका जो हिंदी, हाँ यस, क्लास 3, ये यस वेरी करेक्ट आंसर, क्योंकि यह रूल में है। वेरी करेक्ट आंसर। इन्होंने ये बोला वो भी आंसर सही है, उन्होंने बोला वो भी सही है। इट इज बिकॉज इट इज साइंटिफिकली इट इज प्रूव्ड। ये साइंस है। मैथ्स हम एक सब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन ये साइंस है कि बार बार इसको एक्सपेरिमेंट किया 2 + 2, और मल्टीप्लाई भी करने से भी उतना ही आता है। इसको एक्सपेरिमेंट किया है साइंस के थ्रू कि इसका आंसर 4 ही होगा, इसलिए वो रूल में है, इसलिए 2 और 2 4 ही होगा, 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। इसका मतलब कि जो पहले से हमारे जो पुराने मैथमेटिशियन हैं, या वैदिक मैथ्स हम पढ़ते हैं, या नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, और गुजरात में यूनिवर्सिटी हुआ करता था, बहुतों को मालूम नहीं होगा, उसको बोलते वल्लभी इंस्टीट्यूशन या वल्लभी इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी। इन क्षेत्र में भी मैथमेटिक्स पढ़े जाते थे। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो नई चीज़ नहीं है। ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन या टेबल या मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और अरिथमेटिक और अलजेब्रा जो बोल रही थी, ये सब बहुत पहले से है। आप जो पढ़ रहे हो कुछ भी नया नहीं है। मतलब जो प्रोजेक्ट बनाते हो उसमें भी कुछ नया नहीं है।
अभी अभी आदरणीय पाठक सर ने जो बताया था वो पाइथागोरस और आर्किमिडीज का थ्योरी और आर्किमिडीज का सिद्धांत, पाइथागोरस थ्योरम, ये सब ऑलरेडी किताब में है। किताब में लिखी हुई चीज़ों को आप पढ़ते हो, टेबल याद करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा। इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स का फियर क्यों है? क्यों मैथमेटिक्स से घबराते हो कि आज मैथ्स का पेपर है, मम्मी आज नहीं जाऊँगा स्कूल? तो यदि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता तो मैथमेटिक्स के सवाल होते कि ये मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तभी इसका केवी में एडमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट हमारे पास ऐसा कोई क्राइटेरिया, ऐसा कोई बेस नहीं है कि हम इंटरव्यू लेकर के टेस्ट, रिटर्न टेस्ट लेकर के या पेरेंट्स का बच्चे का इंटरव्यू लेकर के हम एडमिशन देंगे। ऐसा हमारे पास एडमिशन का क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन आज से ईसा पूर्व 300 साल पहले या 3000 साल पहले जो यूरोप में जो पढ़ाई होती थी, तो दुनिया का पहला स्कूल किसका स्कूल था मालूम है? हाँ, हाथ खड़ा किया है। नहीं, दुनिया का पहला स्कूल केंद्रीय विद्यालय नहीं है। दुनिया का पहला स्कूल था यूरोप में, एथेंस में। एथेंस सुने हो? इसको हिंदी में बोलते हैं यूनान। ठीक है। अरस्तु और प्लेटो का नाम सुना है? अरस्तु और प्लेटो, वहाँ पर भी मैथमेटिक्स पढ़े जाते थे और वहाँ पर जो मैथमेटिक्स के ब्रांचेस थे वही थे जो आज है। मतलब हमारा मैथमेटिक्स इतना पुराना है फिर भी हम नई जानकारी हम नहीं जान पाते हैं, और बताई हुई चीज़ को, पढ़ी हुई चीज़ को, लिखी हुई चीज़ को किताब में है और मैडम या सर ने आपको मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया, आप नहीं कर पाते हो क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस। हम मैथमेटिक्स को एक प्रैक्टिस के रूप में या हम प्रयास नहीं करते हैं। मैथ्स का टेबल याद करना है हर बच्चे को, मैथ्स का टेबल एटलीस्ट 10th में तो 20 का टेबल आना चाहिए। ये टेबल इसलिए जाना चाहिए कि वहाँ पे कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा। और ये अभी 2-3 बच्चे 11th क्लास के बच्चे में कि व्हेन यू आर गोइंग टू द अपियरिंग इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो वहाँ पर आपको कुछ ही सेकेंड मिलेगा कैलकुलेशन के लिए, तो आप इसको फास्ट कैलकुलेट कर सकोगे। तो इसलिए कुछ आइडिया है, ट्रिक्स है, आपको विभिन्न ट्रिक्स में से कोई भी मेथड अपनाना है और आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि गणित से अनभिज्ञ व्यक्ति संस्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। तो सभी विषयों का जो आधार है, या जो अभी मैडम बोल रही थी मौलिना मैडम की कोरिलेट, जैसे गाने, म्यूजिक में भी इसका रिलेशन है। म्यूजिक के थ्रू भी मैथमेटिक्स सीख सकते हो। जैसे आदरणीय मनी मैडम ने बताया था, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, अब तुम बताओ कितने तीतर? आंसर होता है 3 तीतर। तो वहाँ भी मैथ्स है। बैंक में जाओगे तो वहाँ भी कंप्यूटर साइंस में सर ने बताया था, वहाँ पर भी मैथमेटिक्स है। तो मैथ्स हर जगह उपयोग में। दुकान में जाओगे, बिना पढ़े लिखे व्यक्ति भी पैसा को कैलकुलेट करते हैं। ये 100 रुपीज़ नोट है, ये 5000 है, ये 2 रुपीज़ नोट है, तो हर जगह है। तो इतना इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को हम उतना ध्यान क्यों नहीं देते हैं? एंड इट इज़ अ कंपलसरी सब्जेक्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड। 10वीं तक आपको मैथमेटिक्स आता है चाहे नहीं आता है, पढ़ना ही पड़ेगा। देन देयर इज ए ऑप्शन, 10वीं के बाद में कुछ सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। आपको साइंस पढ़ना है, ह्यूमैनिटीज़ पढ़नी है, कॉमर्स पढ़ना है, और ये सारे होते हैं। तो मोर और लेस जो क्या नाम बताया, ईशा और माही, इन दोनों ने बताया था, वो आंसर सही नहीं है। देयर आर सो मेनी ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें सम ऑफ द ब्रांचेस और भी हो सकते हैं। एक होता है अलजेब्रा, एक मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटीज तो होगा ही होगा, और उसके बाद में एक होता है ट्रिग्नोमेट्री। ये छोटे प्राइमरी के बच्चे कम से कम नाम याद करके रखो कि आपको ये मैथ्स में आपको काम आता है। ये जो शेप बना रहे थे ना, ट्राइंगल, रेक्टेंगुलर, सर्किल, ओवल शेप, ये किस वो मैथ्स का कौन सा ब्रांच है? माही बता रही ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री। ओके, वेरी गुड। तो ये जो आप इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। ये अलजेब्रा है, ये इक्वेशन है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये एरिथमेटिक है, और ये थ्योरम है। तो इस तरह से छोटे छोटे खेल खेल में सीखो। जैसे बटेर के बारे में आप
जैसे आदरणीय लोकेश सर और आदरणीय वीरेंद्र सर ने कविता के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। तो हम पढ़ते चले जाते हैं लेकिन उसको जीवन में हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं या यूज नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैथ्स हमारा सब्जेक्ट भारी पड़ जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, द पर्पस ऑफ दिस सेलिब्रेशन टू know the facts of great mathematicians like S. रामानुजन और ऐसे ही बहुत सारे जो अभी यहाँ क्या वैष्णव है, अंजलि वैष्णव ने कुछ बताया था, कुछ कोलकाता का और कुछ नाम और लिया था। तो बहुत सारे हमारे देश के मैथमेटिशियन हैं जो किसी कारणवश उनको हम याद नहीं कर पाते हैं उनकी उपलब्धि को। जैसे भास्कराचार्य है जो वैदिक मैथ्स आप पढ़ते हैं। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं का शासनकाल होता था, उस समय भी मैथमेटिशियन होते थे दरबार में, उनका अलग काम होता था। तो शून्य का आविष्कार भी भारत ने किया है, जो आदरणीय मौलाना घोष बता रही थी कि इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो शून्य जब नहीं था तो लोग 1 से कैलकुलेट करते थे, जब शून्य जब आया था तो भारत में जो पाई का मान होता है ये सब हिंदुस्तान की देन है, और जीरो का आविष्कार भी भारत में हुआ था। तो डेसिमल और ये सब जो पढ़ते हैं ये सारे प्राचीन काल में थे, लेकिन कुछ चीज़ों को हिंदुस्तान में जाना गया है, पहचाना गया, और ये मैथ्स और आज और भी सरल हो गया है। तो ज़रूरत है कि केवल मैथमेटिक्स के दिन में नहीं ऐसा एक्टिविटी करें, लेकिन रोज़ आप एक्टिविटी करते हो तो मैथ्स जैसे खेल में सीखो और सीखते सीखते खेलो। तो आज का जो युवा पीढ़ी है ये वो बहुत शॉर्टकट अपनाना चाहता है, वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहता है या मैथ्स की किताब देख के घबराता है। तो मैथ्स और साइंस दोनों का कोरिलेशन है, जैसे उन्होंने बताया कि नियम में है 2 + 2 4 ही होगा, क्योंकि ये साइंस का पार्ट है। इसको ऑब्जर्वेशन किया है, उसको प्रेक्षण बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, और इसको बार प्रैक्टिस किया है कि इसका आंसर 4 ही आएगा, 5 नहीं आएगा। ये मैथमेटिक्स एक साइंस है, साइंटिफिकली इट इज प्रूव्ड। उसी तरह से कुछ और भी थ्योरम बताया था। आर्किमिडीज का सिद्धांत है, घड़ी देखने के लिए आपको मैथ्स आना चाहिए, 9 बजा है कि 12 बजा है। और इसके कुछ हिंदी में भी लोकोक्तियाँ है कि 9 2 11 और 36 का आंकड़ा बोल रहे हैं। तो इसको आप रोज़मर्रा के जीवन में आप पढ़ते लाएंगे तो मैथ्स आपका आसान हो जाएगा। एंड डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स, स्पेशली इन क्लास 10th एंड 12th जहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आपके पेरेंट्स पूछेंगे कि मैथ्स में कितने नंबर आए, इंग्लिश में कितने नंबर आए, ये अंकों का खेल है। अब पास हो गया बोलोगे तो कितना नंबर लाया, कितना परसेंट लाया, तो हर जगह मैथ्स का वैल्यू है। सो वंस अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट all the students, teachers on this auspicious occasion. It is Mathematics Day, National Maths Day. It is observed on 22nd of December. Because of winter break, it is being observed today. And I congratulate the organizers, especially science teachers, who had organized in this way and transfer the message to the little students, primary children also. Thank you and have a nice day. Thank you so much, sir. Now I invite Ms. Pooja Motwani ma'am for vote of thanks. Good afternoon, respected principal sir, respected teachers and my dear students. I am here to मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, क्योंकि हमारा जो नेशनल मैथमेटिक्स डे था, राष्ट्रीय गणित दिवस, इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जो आप सबके बिना नहीं हो पाता, तो सर्वप्रथम मैं प्राचार्य महोदय का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी, जिन्होंने हमें बहुत सारी बातों से अवगत कराया, मैथ्स के महत्व के ऊपर प्रकाश डाला और बच्चों से कुछ प्रश्न पूछकर
उन्हें प्रेरित किया कि मैथ्स के क्षेत्र में और आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तत्पश्चात मैं शिक्षक गणों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी। आदरणीय मोलिना मैम, जिन्होंने सॉन्ग से रिलेटेड गेम करवाया, उन्होंने एक इतनी अच्छी स्पीच डिलीवर की। तत्पश्चात मैं पाठक सर का धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने अपने सब्जेक्ट अर्थात कंप्यूटर साइंस से रिलेट करके मैथ्स को हमारे साथ डिस्कस किया और उस पर प्रकाश डाला। वीरेंद्र सर, लोकेश सर, जिन्होंने इतनी अच्छी कविताओं के माध्यम से हमें गणित को और रोचक तरीके से सीखने के लिए प्रेरित किया, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। तत्पश्चात मैं सभी बच्चों का धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि बच्चों के बिना स्कूल का कोई भी कार्यक्रम अधूरा लगता है। तो आज हमारे इस राष्ट्रीय गणित दिवस के उपलक्ष्य में जिन भी बच्चों ने प्रस्तुतिकरण अपना प्रस्तुत किया, चाहे वो स्पीच हो, चाहे वह कोई गेम हो, या जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट और ट्रिक्स हमारे साथ शेयर किया, उन सभी चीज़ों के लिए, उन सभी बातों के लिए अपना पार्टिसिपेट अपनी भागीदारी प्रस्तुत करने के लिए यहाँ मैं सारे बच्चों का धन्यवाद करना चाहूँगी। और जिन बच्चों ने यहाँ इतनी देर बैठकर इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को एंजॉय किया, उसका आनंद उठाया, उन सभी बच्चों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं शुभम सर का धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने हमारे पूरे कार्यक्रम की अच्छी तरीके से शूटिंग की, और बाकी सारे टीचर्स जो यहाँ उपस्थित हैं और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन्होंने सहभागिता दी, उन सभी टीचर्स का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। समस्त हमारे दीदी और भैया लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को शुरू होने से पहले जो इतना अच्छा यहाँ इंतज़ाम किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो आज का ये सेलिब्रेशन यही समाप्त होता है। धन्यवाद आप सभी का यहाँ आने के लिए।